آج ویو 360 میں کیا طالبان قیدیوں کی رہائی افغانستان میں امن کا راستہ ہموار کر پائے گی؟ پاکستان میں کورونا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کا اظہار اطمینان، دیکھیں گے زمینی حقائق کیا ہیں۔ اور اگلا امریکی صدر کون ہوگا؟ امریکی صدارت کی پیشنگوئی کرنے کے 2 مقبول ماڈلز کے موجودین کا جواب۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں پہ 20 سال کی بدامنی اور خانہ جنگی اور جنگ کے بعد اس وقت امن ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ امن کی بات اس حوالے سے بھی اہم تھی کہ لویا جرگا کے لیٹسٹ اجلاس کی اگر ہم بات کریں، جس میں 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے مشاورت کی گئی اور ان کی سفارشات پہ بھی عمل کرنے کو صدر غنی کو کہا گیا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد دوحہ میں بین الافغان امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ زلمے خلیلزاد کا یہ بیان اتوار کو کابل میں ہونے والے افغان مشاورتی لویا جرگا کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے بعد دیا گیا۔ لویا جرگا نے افغان حکومت سے ان بقیہ 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کی سفارش کی تھی جو مبینہ طور پر سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ طالبان کا مطالبہ 5000 تک قیدیوں کی رہائی کا تھا اور افغان حکومت پہلے ہی کئی ہزار قیدی رہا کر چکی ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد اب مستقبل کیسا ہوگا؟ افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے اس سلسلے میں میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی۔ ان سے جب میں نے پوچھا کہ کیونکہ رہائی کے بعد طالبان پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ امن کو موقع دیں، کیونکہ اسی وجہ سے وہ پہلے بین الافغان مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا دیکھیں بظاہر تو اس کے علاوہ اور کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ طالبان کا یہ مطالبہ تھا اور ان کی دلیل یہ تھی کہ امریکہ نے دوحہ میں یہ جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا، اس میں کمٹمنٹ تھی کہ 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور طالبان 1000 سرکاری قیدیوں کو رہا کریں گے، اور وہ طالبان نے تو رہا کر دیے تھے۔ یہ 400 قیدی طالبان کے رہتے تھے اور اس کے بارے میں اشرف غنی کہہ رہے تھے کہ ان کو رہا کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں، ان کے اوپر مقدمے۔ تو اگر یہ طالبان کے قیدی رہا ہو گئے تو میرے خیال میں جس طرح دونوں فریق کہہ رہے کہ وہ 3 دن سے لے کے 1 ہفتے تک بین الاقوامی مذاکرات شروع کر سکتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ مذاکرات کب تک چلیں گے، اس میں کیا رکاوٹیں ہوں گی۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ مذاکرات آسان نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم ایک پیش رفت ہو جائے گی۔ تو پاکستان کا کیا رول ہوگا اس پورے قصے میں؟ اب آنورڈز پاکستان کا کیا رول رہے گا؟ دیکھیں پاکستان تو اب یہ ہے کہ کوشش تو کرے گا، اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ قیدیوں کا معاملہ تھا پاکستان نے کئی دفعہ بیانات بھی دیے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو یہ سفارت کاری کریں گے اور طالبان سے تو ان کے رابطے ہیں، ان کو سمجھائیں گے یا جو بھی طریقہ اپنائیں گے، اور پھر افغان حکومت کے ساتھ بھی کافی ان کا آنا جانا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ میرے خیال میں کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دے گا، وہ چاہے گا کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے۔ حالانکہ افغان حکومت اس بات کو نہیں مانتی، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طالبان کے بہت قریب ہے۔ لیکن ابھی اگر امریکہ نکلتا ہے وہاں سے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاور ویکیوم بنے گا؟ ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ کوئی رول پلے کریں گے، کوئی ٹیک اوور کریں گے، وہاں پہ اثر و رسوخ اپنا بڑھائیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ 2014 کے بعد آپ نے دیکھا کہ غیر ملکی فوجی کتنے تھے اور کتنے رہ گئے، اب تو بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو پاور ویکیوم سے آ گیا تھا اور اس کو طالبان نے ایکسپلائٹ کیا تھا۔ طالبان کی پیش رفت ہوئی تھی، انہوں نے نئے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ افغان فوج کی جو نقصانات ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ تو ایک تو وہ پاور ویکیوم تو تھا، شاید مزید اور بھی آ جائے۔ اب یہ ہے کہ کئی غیر ملک جو ہیں وہ افغانستان میں ان کے فیورٹس ہیں اور وہ مداخلت بھی کرتے ہیں۔ امریکہ چاہے گا کہ ایسا نہ ہو، امریکہ ان سے تعاون مانگے گا۔ چلے پاکستان سے کہا جائے گا، پاکستان
ताउन कर लेगा, चीन और रूस और बाकी जो सेंट्रल एशियंस हैं, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हैं और फिर अफगान हुकूमत ज़ाहिर है उनसे कहेगी कि वो हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी पेचीदा सूरत हाल होगी और सारे मुल्क जिनका इंटरेस्ट है, जिन्होंने सरमायाकारी की अफगानिस्तान में किसी एक फरीक का साथ दिया है, वो हालात को देखते हुए फैसले करेंगे। यानी मेरे ख्याल में उनकी दिलचस्पी अफगानिस्तान में रहेगी और वो चाहेंगे कि हालात को अपने मफाद में इस्तेमाल करें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब आपका हमें ज्वाइन करने का और इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने का। शुक्रिया जी। पाकिस्तान समेत खित्ते और दुनिया भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाही मुसलसल जारी है। चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला ये वायरस अब तक दुनिया में तकरीबन 2 करोड़ लोगों को मुतासर कर चुका और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 7.25 लाख से जायद इंसानी जानें निकल चुका। दुनिया के 1/4 से जायद केसेस अमेरिका में हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 से मुतासर होने वालों की तादाद 50 लाख से जायद हो चुकी। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 1,63,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिका के बाद ब्राजील और हिंदुस्तान दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी अमवात की तादाद 1 लाख से बढ़ गई है। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 64,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। हिंदुस्तान में मुतासरीन की तादाद 22 लाख से तजावुज कर चुकी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में एक ठहराव आने के बाद गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों में लगे लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। वॉइस ऑफ अमेरिका की गेतियारा अनीस हमें बता रही हैं कि इस्लामाबाद में मामूल की सरगर्मियों की बहाली के बाद रश तो कम है, मगर एहतियाती तदाबीर पर अभी भी खातिर-ख्वाह अमल नहीं हो रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं आपारा मार्केट में। एक जानी पहचानी मार्केट है और काफ़ी रश होता है इस मार्केट में आम तौर पे। अगर आप यहाँ आएँ दोपहर के औकात में या शाम के औकात में ख़ास तौर पे। इस वक्त आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लोग आपको चलते फिरते ख़रीदारी करते नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा रश नहीं है इस वक्त मार्केट में, लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि अभी लॉकडाउन ही हुआ है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि यहाँ पर जो SOPs हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं वो बहुत कम लोग जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मौजूद कुछ दुकानदारों से भी बात की, उन्होंने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हम तो कह ही सकते हैं, हालांकि हमने ये नोटिस भी लगाया हुआ है कि आप हर शॉप पे जो सैनिटाइज करें और डिस्टेंस अपना जो सा मेंटेन रखें। तो ये कि अब इस तरह करेंगे तो फिर हम आगे रेगुलरली कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी तरह 24/7 आवर्स जो है ना ओपन कर सकते हैं। इन केस अगर दोबारा ये वबा इंक्रीज़ कर जाती है तो फिर अल्लाह ना करे कि वो उसी तरह फिर वो आप जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम नंबर्स की तरफ ध्यान दें तो इस्लामाबाद में 15,000 के करीब केसेस टोटल हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं हुकूमत की जानिब से बताए गए, और इनमें जो है वो 3 अगस्त के बाद से अब तक बतदरीज इजाफा देखा गया है। सब कुछ ओपन कर देते हैं, वापस लोग अपनी मामूलात ज़िंदगी को कंटिन्यू करते हैं, बग़ैर प्रिकॉशन के करते हैं, तो ये आगे चल के परेशानी का सबब भी बन सकता है। क्योंकि जिन इलाकों में भी कोविड की सेकंड जो है वेव आई है वो काफ़ी उसने वहाँ पर तबाही मचाई है। यहाँ पे किस हद तक लोग इसको फॉलो करेंगे ये अभी तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये जो है हालात मज़ीद वाज़े हो जाएंगे। और अब चलते हैं पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा। पेशावर के शहरी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबब लगाए गए लॉकडाउन के ख़त्म होने पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बेसिकली कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है तो हम एक घर में फील इस तरह कर रहे हैं कि हम एक पिंजरे में बंद हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं खुद एज अ टीचर, एज एक एकेडमिक बुक्स लेने के लिए आया था, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपनी पसंद की बुक्स लेकर जा रहा हूँ। लॉकडाउन की ख़त्म होने से लोगों का खौफ ख़त्म हो रहा है, और इससे पहले लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों के दिल में खौफ था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते थे और उससे बिज़नेस जो है काफ़ी मुतासिर था। अब जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं
बिजनेसेस बूस्ट करें और उम्मीद करते हैं स्टेप बाय स्टेप अभी जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ है इसी तरह स्कूल का जो निज़ाम है वो भी स्टेप बाय स्टेप खुलेगा, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वही अपनी ग्रोथ लाएंगे इंशाल्लाह। और अब बात करते हैं कराची की, जहां इस बार बरसात बहुत जम के बरसी है। कोरोना लॉकडाउन के खात्मे के बाद पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर से सिद्रा डार हमें बता रही हैं कि रेस्टोरेंट्स खुलने से लोग खुश तो हैं, लेकिन इस कारोबार से मुंसलिक अफराद कहना है कि उनके औकात-ए-कार में मजीद तोसी की जाए। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में टेबल सर्विस शुरू हो गई है, जैसे हमारे भी इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि 4 माह के बाद यहाँ पर इसकी इजाज़त मिली है। हमारी रेस्टोरेंट्स वालों से भी बात हुई है तो उनका कहना था कि जब 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद से ये सर्विस मुअत्तल हो गई थी। वो खासे खुश हैं कि ये फैसला सामने आया, इससे उनका कारोबार भी बेहतर होगा। लेकिन हुकूमत सिंध ने इस बात पर पाबंद किया है कि तमाम SOPs का ख्याल रखते ही ये जो तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ हैं ये जारी रह सकती हैं। रेस्टोरेंट्स की तरफ से जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो ऑल रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं उनका कहना है कि जो 10 बजे का वक्त दिया गया है वो कम है, क्योंकि डाइन इन सर्विस वगैरह जो है उसमें टाइम लगता है, तो उसको रात 12 या 1 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने अपनी सिफारशात सुबह सिंध हुकूमत को दी हैं। ताहम जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी तमाम तर SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे बाज़ारों और मॉल्स के हवाले से कहा गया है। ये बताया जा रहा है कि जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो भी इन चीज़ों का जायज़ा लेती रहेगी कि इन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। इसी के पेश नज़र 15 सितंबर को जो एक बड़ा फैसला होगा कि शादी हॉल्स खोलने हैं, तालीमी इदारे खोले जाएंगे या मज़ारात को खोलना है, उसकी इजाज़त दी जाएगी। ताहम इस वक्त जो शहर भर में मनाज़र हैं वो ये कि काफ़ी रेस्टोरेंट्स पर रौनक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आकर खाने वाले भी खुश हैं और जिनके रेस्टोरेंट्स हैं वो भी खुश हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो दोबारा से वैसे ही स्टेब्लिश हो गया है जैसे पहले था, जिसके लिए उन्होंने 4 माह इंतज़ार किया है। और अब चलते हैं पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान। कोयटा के शहरियों का कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन में नरमी पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। आप यकीन करिए 3-4 महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरे। सारे जो है लोग लॉकडाउन में थे, सारे परेशान थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुशी है और हम बहुत रिलैक्स अभी फील कर रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा खौफ था, मतलब हम लोगों को अपने डॉक्टर को हो चुका था, हम लोग खुद भी बहुत परेशान थे, हम लोगों ने अपने भी टेस्ट कराए। मिडिल क्लास का जो था उसको इतना इफेक्ट नहीं किया जितना लोअर क्लास के तबके को किया, ठीक है। और जैसा कि मतलब अभी जैसे हुकूमत ने ऐलान किया कि 8 अगस्त से जो है इसको ख़त्म किया जाएगा लॉकडाउन को, तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि मतलब जो बलूचिस्तान है उसमें इतने जो है मतलब कोरोना के पेशेंट और अमवात नहीं है, और मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा और बहुत एक रीज़नेबल जो है एक फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से। और अब बात करते हैं अमेरिका में कुछ ऐसे कोरोना केसेस का या कोरोना वायरस के ऐसे मुतासरा अफराद का जो शायद इससे पहले उनके बारे में बात नहीं की जा रही थी या कहा जा रहा था कि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत इस तरह की है कि वो ज़्यादा मुतासर नहीं होंगे। जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान 97,000 से ज़ायद अमरीकी बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एसोसिएशन की एक मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक ये केसेस 16 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान रिपोर्ट हुए हैं। इन आदाद शुमार का मतलब ये भी है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद में 40% इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब अगस्त के आगाज में अमेरिका की 25 से ज़ायद रियासतों में हज़ारों वालिदैन, उसातिज़ा, तलबा और कम्यूनिटी अरकान महफूज और मसावी स्कूलों के मुतालबे के लिए सड़कों पर निकले। नेशनल डे ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर मुनाकिद होने वाले इन मुजाहिरों का मकसद ये पैगाम देना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान स्कूलों को दोबारा खोलना खतरनाक है, लेकिन अब ये मामला सियासी बन गया है। व्हाइट हाउस और बहुत से रियासती गवर्नर्स की तरफ से स्कूल खोलने के लिए दबाव बढ़ रहा है। महफूज स्कूलों और मसावी तालीम के मुतालबे के लिए अगस्त के शुरू में हज़ारों वालिदैन, असातिज़ा, तलबा और दूसरे शहरियों ने न्यूयॉर्क की गलियों में मार्च किया। अप्रैल में कोविड की वजह से हमने अपनी एक कोलीग को खो दिया और हम नहीं चाहते कि मजीद असातिज़ा इस वायरस का शिकार हों। हर एक को महफूज रखने के लिए इस मौसम ख़िज़ा में हमें 100% ऑनलाइन तालीम की ज़रूरत है। बहुत सी रियासतों की तरह न्यूयॉर्क में भी स्कूलों को इलाके की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर दोबारा खोला जाएगा। न्यूयॉर्क शहर में तलबा हफ्ते में सिर्फ 3 दिन तक स्कूल के अंदर क्लासेस ले सकेंगे।
Here's the deal. For the vast बात यह है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल जा सकेंगे और कसीर तादाद में स्कूल भी खुले होंगे। बच्चे हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन स्कूल जा सकेंगे। इसका इन्हिसार उस हफ्ते पर होगा। हम कुछ दूसरे स्कूल्स में गैर मामूली सूरत हाल होगी और हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर किसी स्कूल में कोविड-19 का एक तस्दीक शुदा केस हो तो पूरी क्लास को 2 हफ्तों के लिए करंटीना में रखा जाएगा। अगर 2 मुख्तलिफ क्लासेस में 2 मुस्बत केसेस हों तो पूरे स्कूल को करंटीना में रखा जाएगा। लेकिन एहतजाज में शामिल बहुत सी टीचर्स के लिए बच्चों और असातिज़ा को वापस स्कूल भेजना कबल अज़ वक्त है। उनका कहना है कि तकरीबन 15 लाख असातिज़ा या 4 में से 1 को अपनी सेहत को पहले से दरपेश मसाइल के बाइस कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमारे स्कूल्स पहले से ही पुरहुजूम हैं, मुनासिब तौर पर हवादार नहीं या सहूलियात नहीं हैं और वो हमें वापस भेजना चाहते हैं। हालांकि मुल्क भर में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर बजट में कटौती हो रही है, ये मुमकिन नहीं। 5वीं जमात के लॉरेंस जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे उसे मार्च के बाद से बंद कर दिया गया था, लेकिन वो जल्द वापस जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो वबा से आगाह हैं, मगर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने और अपनी पसंद की क्लासेस लेने के लिए बेताब हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं। मैं अपने दोस्तों को याद करता हूँ, मुझे अपने असातिज़ा याद आते हैं और मैं वापस आना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि स्कूल दोबारा खोलने का मंसूबा एक फ़रेब है, क्योंकि स्कूलों के पास काफ़ी वसाइल नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्लासेस या ऐसे असातिज़ा नहीं होंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। 16 साला मेरल मासूम का कहना है कि उनके हमजुमात भी उनके हम ख्याल हैं। न्यूयॉर्क शहर के लिए मेयर की उम्मीदवार डेयान मोरेलिस इस ख्याल की तायीद करती हैं। मैं साबिक स्पेशल एजुकेशन टीचर और साबिक फॉस्टर केयर सोशल वर्कर हूँ और 2 जवान बच्चों की माँ भी हूँ। यही वजह है कि मैं असातिज़ा और तुलबा की हिमायत करती हूँ कि बच्चे तब तक स्कूल वापस न जाएं जब तक वो महफूज न हों। कौमी सतह पर एहतजाज के बावजूद जॉर्जिया, मिसिसिपी और दीगर रियासतों में स्कूल दोबारा खुल रहे हैं, अगरचे तलबा और स्कूल के मुलाजमीन में कोरोना वायरस के कुछ केसेस सामने आए हैं। नीना विश्नवा की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका का नया सदर कौन होगा? नवंबर के सदारती इंतखाबात से पहले इस सवाल में अमेरिकी अवाम की दिलचस्पी बढ़ रही है। इस वक्त अवामी राय के जायजे मुतवक्के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी दिखा रहे हैं, ताहम अवामी राय के जायजे किसी भी उम्मीदवार की एक मखसूस वक्त पर मकबूलियत तो दिखा सकते हैं, ये हमेशा दुरुस्त इंतखाबी नताइज की पेशगोई नहीं करते। ऐसे में एक मुतबादिल कुछ माहिरीन के अपने तैयार करदा मॉडल्स भी हैं जो मुतवक्के सदर की पेशगोई करते हैं। आइए जानते हैं उनके मुताबिक इस बार अमेरिका का नया सदर कौन होगा। 2016 के सदारती इंतखाबात में हमें मालूम हुआ कि अवामी राय के जायजे गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने 2 ऐसे माहिरीन से राब्ता किया जिनकी सदारती नताइज के बारे में पेशगोइयाँ सच साबित होती रही हैं। मैं एलन लेकमन हूँ, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तारीख का प्रोफेसर और 1984 से अब तक के तमाम 9 सदारती इंतखाबात के नताइज की दुरुस्त पेशगोई कर चुका हूँ। मैं हूं हेलमेट नोरपॉफ, स्टोनी ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर। मेरा मॉडल 1912 से अब तक के 27 में से 25 इंतखाबात के नताइज की बिल्कुल सही पेशगोई करता है।
ان دونوں کے ماڈلز کا طریقہ کار کیا ہے؟ پروفیسر ایلن اپنے ماڈل میں 13 درست یا غلط سوالوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے معیشت، خارجہ پالیسی، پارٹی کا اتحاد اور امیدوار کی شخصیت کا پرکشش ہونا وغیرہ۔ درست جواب پر موجودہ صدر اور غلط جواب پر ان کے مد مقابل کو پوائنٹ ملتا ہے۔ اگر موجودہ صدر کو 6 یا اس سے زیادہ منفی پوائنٹس ملیں تو ان کی ہار کی پیشگوئی کی جاتی ہے۔ پروفیسر ہیلمٹ کا 1912 سے استعمال کیا جانے والا ماڈل صرف ایک پہلو پر غور کرتا ہے کہ شروع کے صدارتی پرائمریز یا ریاستی سطح پر صدارتی انتخاب کے لیے پارٹی کا کون سا امیدوار کامیاب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے جسے میں پینڈولم کا جھولنا کہتا ہوں۔ یہ طریقہ 200 سال تک کی پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ آپ کی پیش گوئی کیا ہے؟ صدر ٹرمپ کے جیتنے کے 91% امکانات ہیں۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ اس سال صدر ٹرمپ ہار جائیں گے۔ پروفیسر ایلن نے کورونا بحران اور بلیک لائیوز میٹر تحریک کے بعد صدر ٹرمپ کی جیت کے بارے میں اپنا پرانا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ وہ سن 2019 کے آخری حصے سے صدر ٹرمپ کی جیت کی پیش گوئی کرتے آئے تھے۔ صرف چند مہینوں کے دوران صدر ٹرمپ اور ان کی جماعت کے لیے میری پیش گوئی یقینی جیت سے ممکنہ ہار میں بدل گئی۔ ان کے خلاف منفی پوائنٹس 4 سے بڑھ کر 7 ہو گئے ہیں۔ ہیلمٹ، جو دونوں بڑی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 یا مظاہروں کا ان کی پیش گوئی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میری پیش گوئی غیر مشروط اور حتمی ہے، جیسے پتھر پر لکھی تحریر۔ 9% چانس ہے کہ یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن میں نے یہ چانس لیا ہے۔ دونوں اسکالرز کی پیش گوئی حتمی ہے، تاہم ڈیموکریٹ ووٹر ایلن کے مطابق انتخابی دھاندلی اور ووٹروں پر دباؤ ان کے ماڈل کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ ریپبلکن جماعت کے ووٹرز مجھ جیسے عمر رسیدہ سفید فام مرد ہیں۔ پارٹی نئے عمر رسیدہ افراد تو تخلیق کر نہیں سکتی، لیکن وہ مخالف ڈیموکریٹ جماعت میں اقلیتوں اور نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، جو میرے لیے پریشان کن ہے۔ دونوں ماہرین اپنی اپنی پیش گوئی کے لیے عوامی رائے کے جائزوں پر بالکل انحصار نہیں کر رہے۔ یہ سماجی اور سیاسی بیداری کا دور ہے۔ شاید کچھ افراد کو اگر لگے کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا تو وہ رائے عامہ کے جائزوں کے دوران بتانا ہی نہیں چاہیں گے کہ وہ صدر ٹرمپ کے حامی ہیں۔ جیت جس کسی کی بھی ہو، آپ بھولیے گا نہیں کہ آپ نے یہ پیش گوئی پہلے ہی سے ان ماہرین سے سن رکھی تھی۔ پیٹسی بدا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور اب شو کے آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مہاتما گاندھی کی ایک اینک کے بارے میں۔ برطانیہ کی ایک کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں ایک اینک نیلامی کے لیے پیش کرے گی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مہاتما گاندھی کی تھی۔ پوری دنیا سے اس نیلامی میں دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سنہری رنگ کے گول شیشوں والی اس اینک کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ مہاتما گاندھی نے جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران برٹش پیٹرولیم کمپنی کے ایک اہلکار کو تحفے میں دی تھی۔ برطانیہ میں واقع برسٹل آکشنز کے عہدیدار اینڈی سٹو کا کہنا ہے کہ اس اہلکار کے 80 سالہ بھتیجے نے یہ اینک فروخت کے لیے پیش کی ہے، جنہیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے کچھ دوسرے چشموں کے ڈیزائن اور گاندھی کی اس دور کی بینائی کی تشخیص کے نسخے سے لگتا ہے کہ یہ چشمہ انہی کا تھا۔ مہاتما اکثر اپنی اینکیں ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اینک 21 اگست کو بیچی جائے گی، مگر پوری دنیا خصوصاً بھارت سے خریدار اس میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور اب تک اس کی بولی $65,000 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، لیکن کچھ احتیاط کے ساتھ لاک ڈاؤن میں باہر نکلیے اور احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کیجیے۔ ماسک پہنیے، کیونکہ ماسک کی وجہ سے شاید آنے والے دنوں میں آپ کو کورونا وائرس سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔